Hi everyone, welcome back. I'm Shilpi and we are going to continue the chapter today, the triangle and its properties. So today we are going to study about exterior angle and a theorem, that is exterior angle theorem or exterior angle property of the triangle. So उससे पहले हमें पता होना चाहिए what are exterior angles and what are interior opposite angles of a triangle. So here I have taken a triangle ABC यहाँ पे एक मैंने triangle ले लिया and what I have done here, I have produced one of the sides of this triangle. So I have produced BC up to D. This is produced, and after producing you can observe that in the exterior of this triangle, that means outside the triangle, we are getting an angle, this angle. This is known as the exterior angle of a triangle. So in the same way you can draw other exterior angles of a triangle also. I have shown you just one. So now in this case, according to this figure, the exterior angle here is angle ACD. This is the exterior angle. Now what are interior opposite angles? See, interior it suggests that it is inside the triangle, and opposite means it is opposite side of the exterior angle, है ना. तो इनसाइड द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट कौन कौन से एंगल्स है? एक तो ये एंगल ए है इसके ऑपोजिट एंड एंगल बी है इसके ऑपोजिट. सो एंगल ए एंड एंगल बी आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल ए सी डी, मतलब अंदर की साइड ट्रायंगल के और ऑपोजिट की साइड. सो वी हैव दीज टू ट्रायंगल. तो इस केस में इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन सा हो जाएगा? एंगल ए and angle B. Then interior adjacent angles. Adjacent, interior means inside the triangle here and adjacent means बिल्कुल उस एंगल से लगा हुआ. तो इस एक्सटीरियर एंगल से बिल्कुल लगा हुआ कौन सा एंगल है जो ट्रायंगल के अंदर है? ऑब्वियसली दिस एंगल. So this is the interior adjacent angle of this exterior angle. So here the interior adjacent angle is angle C, or you can say angle ACB. This is the interior adjacent angles, right? So now let's move on to theorem. Now the angles are clear to you, I hope. Now the theorem is exterior angle property of a triangle. Now what it states, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angles. मतलब अगर हम किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा वो एंगल इक्वल होगा टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. जो दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है उसके सम के इक्वल होगा. दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ ये फिगर ली है, आई हैव प्रोड्यूस्ड बी सी टू डी, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? ये एंगल 4 है ना. सो दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, यानी ये इक्वल होगा किसके? एंगल 1 प्लस एंगल 2. ये दोनों तो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इसके, राइट. सो दिस वी हैव टू प्रूव. थ्योरम कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि ये कैसे आया एंड देन वी विल बी यूजिंग इट इन द क्वेश्चंस. So here I have already written what is given. A triangle ABC is given and exterior angle ACD is given after producing BC. हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल 4 है दिस इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस प्रूव इट. नाउ एज यू कैन सी हियर BCD is a स्ट्रेट लाइन. BCD एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है एंगल 3 एंड एंगल 4, दिस इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, है ना. सो लीनियर पेयर है तो सम कितना होगा? 180. सो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. या फिर हम बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4. लेट दिस बी इक्वेशन 1. इसे हमने इक्वेशन 1 मान ली. Now let us use angle sum property of the triangle. So by angle sum property of triangle, angle sum property क्या होता है? That sum of all three angles of a triangle is equals to 180. So here
angle 3 plus angle 2 plus angle 1 is equal to 180 degree, और यहाँ से अगर हम angle 3 की वैल्यू निकाल लें तो it will be 180 minus angle 1 minus angle 2. Let this be equation 2. तो हमने किया क्या, दोनों इक्वेशन से हमने यहाँ से भी एंगल 3 निकाल लिया और यहाँ से भी एंगल 3 निकाल लिया, राइट. सो एंगल 3 इसके इक्वल है, एंगल 3 इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए. सो वी हैव 180 माइनस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2. ठीक है, तो 180 और 180 कैंसल्ड, माइनस एंगल 4 इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, माइनस एंड माइनस कैंसल्ड, वी हैव एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. यही तो हमें प्रूफ करना था, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. सो इट इज प्रूव्ड. We will be using this theorem in the questions. Okay, some terms are there now. इनकी बस definition पता होनी चाहिए. Medians और altitudes क्या होते हैं. Suppose there is a triangle, और इस triangle के किसी भी एक vertex से अगर मैं उसके opposite side, मतलब इसके opposite, इसके सामने वाली side का जो mid point है उससे join कर दूँ, then this line segment is known as the median of that triangle. इसी तरह से इस वर्टेक्स को अगर मैं इसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ, दिस इज ऑल्सो अ मीडियन, एंड इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो अ मीडियन. सो व्हाट्स अ मीडियन? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल. नाउ एल्टीट्यूड. What is altitude, or you can say height? The altitude is the shortest distance from the vertex to the opposite side. मतलब किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसकी जो ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड है, उस वर्टेक्स और उस साइड के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगी जब मैं इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी. इफ दिस इज अ परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई इन ब्रैकेट में यहाँ हाइट लिखा है. सो एल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द opposite side and the shortest distance is the perpendicular distance. तो किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, then it is the altitude of that triangle. Okay, now triangle inequality property. ये प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है. दो पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है इस प्रॉपर्टी को. दो पॉइंट्स है यहाँ पे, वन फॉर द सम एंड द अदर फॉर द डिफरेंस. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट में द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. मतलब ट्राइंगल के अगर हम किसी भी दो साइड्स का सम लें तो वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से ग्रेटर होगा. As you can see here, I have taken a triangle in the figure, triangle ABC, and जो साइड्स की लेंथ है वो मैंने यहाँ पे ले ली. दिस इज A, दिस इज स्मॉल b एंड दिस इज स्मॉल c. So these are the lengths of the sides of this triangle. So according to this property, inequality property, अगर मैं कोई भी दो sides लूँ, suppose I take A and B, तो A plus B must be greater than C. If I take AC, then A plus C must be greater than B. If I take B and C, then B plus C must be greater than A. मतलब कोई भी दो साइड्स का अगर मैं सम ले लूँ तो जो थर्ड साइड बची उससे ग्रेटर होना चाहिए उसका सम. Then the triangle is possible, otherwise not. तो इसी तरह से डिफरेंस के लिए भी ये इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है. डिफरेंस के लिए क्या है? सपोज इफ आई टेक हेयर A is greater than C and this is greater than B. Okay, so if I take any two sides, suppose I am taking A and B, so A minus B, कोई भी दो sides का अगर मैं difference ले रही हूँ,
इट शुड बी स्मॉलर देन द थर्ड साइड. तो ये स्मॉलर होना चाहिए किससे? सी से. इफ़ आई टेक ए एंड सी, तो ए और सी में कौन सा बड़ा है? ए. तो ए माइनस सी ये स्मॉलर होना चाहिए थर्ड साइड से, यानी कि बी से. एंड इन द सेम वे इफ़ आई टेक बी एंड सी, तो बी और सी में सी बड़ा है, तो सी माइनस बी यानी इसका जो डिफरेंस है वो स्मॉलर होना चाहिए थर्ड साइड. कौन सी बची? ए. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ही होगी. प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं. वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज इन सम ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ टू स्पेशल ट्राइंगल्स. यहाँ पे ज़्यादा डीपली हमें नहीं पढ़ना है ट्राइंगल्स के बारे में, बस एक बेसिक इसके बारे में बताया हुआ है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे एज इन द फिगर इट इज़ शोन ए बी, बी सी एंड ए सी आर इक्वल. अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है देन इट इज़ ऑल्सो इक्वी एंगुलर. मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों को अगर मैं x मान लूँ तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180. दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू 180. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 60. तो ईच एंगल आ गया 60 डिग्री. दैट मीन्स इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्रीज. ओके. देन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है. एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल. अच्छा, दो साइड्स जो ये इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं यानी ये एंगल्स ये इक्वल होते हैं. ये x है तो ये भी x होगा. एंड दीज आर कॉल्ड बेस एंगल्स, राइट. एंड जो थर्ड एंगल बचा, जो इन दो इक्वल लाइंस इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ये, दिस इज कॉल्ड vertex angle of an isosceles triangle. Okay, so let us start with the questions. Some questions are given over there. Let us discuss one by one. The first one is from the figure find the value of x. Okay, ये हमें figure दे रखी है and we have to find the value of x here. So you can see यहाँ पर एक exterior angle form हो रहा है. This one, this is the exterior angle, ये पूरा, right. Now using exterior angle property of a triangle, using exterior angle property of triangle, we have angle ACE is equals to, इट इज़ क्या पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी में? इट इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. उन दोनों के सम के इक्वल. तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे कौन से हैं? दिस वन एंड दिस वन. सो इट इज़ इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. नाउ एंगल ACE क्या है? x प्लस 90. फिगर में देख सकते हो x और 90 आ रहा है इस एक्सटीरियर एंगल में, राइट. So this is equal to angle A is given 70 degree plus angle B is given 40 degrees. So x plus 90 is equals to, ये हो गया 110 और x is equals to 110 minus 90 और we have x is equals to 20. So therefore the value of x is, sorry, this is 20. Answer. Okay, now next question. If the sides of a triangle are produced in order. अब यहाँ एक order में सारी sides को produce करा है. यहाँ BC को D तक, CA को E तक, AB को F तक इसे produce कर रखा है. Prove that sum of the exterior angles so formed is 360. यानी इससे जो exterior angles form हुए हैं उसका sum हमें prove करना है कि that is equal to 360 degrees. तो यहाँ पे हम angles mark कर लेते हैं. तो पहले मैंने triangle के angles mark कर लिए यहाँ पर.
मान लेते हैं दिस एंगल इज 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3. Now I am taking the exterior angles, I am naming it as, let this angle is angle 4 and this exterior angle is angle 5 and this exterior angle is angle 6. Okay, now we are using exterior angle property. So using exterior angle प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम तीनों एक्सटीरियर एंगल्स के लिए यहाँ पर लगा देंगे. तो फर्स्ट आ जाएगा एंगल 4, ये हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट. ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, एंगल 2 एंड एंगल 3. इन द सेम वे we have angle 5 is equals to angle 1 plus angle 3. यहाँ पर एंगल 5 है, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट इज एंगल 6, दिस इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो दिस इज एंगल 6 एंड इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2. ठीक है. नाउ लेट दिस बी इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दीज 3 इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन से एंगल 2 प्लस एंगल 3, सेकेंड इक्वेशन का RHS एंगल 1 प्लस एंगल 3, थर्ड इक्वेशन का RHS एंगल 1 प्लस एंगल 2. सो वी हैव एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. अब ये ट्वाइस कैसे आया, यू कैन सी हियर, एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, angle 2 plus angle 2 twice of angle 2 and angle 3 plus angle 3 twice of angle 3. So I have taken 2 common, 2 into angle 1 plus angle 2 plus angle 3. Now you can observe here angle 1, angle 2, angle 3, these are the angles of the triangle. So you know that the sum of all interior angles of a triangle is 180 from angle sum property. So you can replace it by 180. So you can write angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equals to 2 into 180. Reason, by angle sum property of triangle, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180, ट्रायंगल के एंगल्स है, राइट. सो वी हैव एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 180 हो गया 360. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. या ये फिगर दे रखी है इन ट्राइंगल PRQ, साइड QR इज एक्सटेंडेड टू S, ये साइड एक्सटेंड करके S तक ले आए हैं. इफ एंगल PRS इज 150, ये एंगल हमें दे रखा है 150 डिग्रीज एंड RP इक्वल्स टू RQ. ओके, तो ये RP और RQ ये इक्वल दे रखे हैं. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसे हम x मान लेते हैं. तो यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे. सिंस RP इज इक्वल्स टू RQ, देयरफॉर ट्रायंगल PRQ इज आइसोसेलेस. सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q और इसे हमने x मान लिया दोनों को. ठीक है. नाउ लेट एंगल PRQ बी y, इस एंगल को हमने मान लिया y. नाउ यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये जो 150 वाला एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है, इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो गया x एंड x, सो दिस इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q। ये 150 दे रखा है, एंगल P इज x एंड एंगल Q इज x, तो ये हो गया 150 इज इक्वल्स टू 2x और यानी कि x इज इक्वल्स टू 75। तो P और Q एंगल हमें पता चल गए, दिस इज 75। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल y। Now you can see this is a straight line, it is forming a linear pair, so the sum will be 180. So therefore SRQ is a straight line, so we have 150 plus y is equals to 180, linear pair in short I have written. So y is equals to 180 minus 150, that is 30. So we got all the three angles. So you can write the answer statement, ending statements. Therefore angle P is equals to angle Q is equals to 75 and angle PRQ is equals to 30 degrees. Answer, right? Okay, next question. The lengths of two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. दो sides triangle की length दे रखी है हमें. Between which two numbers can length of the third side fall? So let us take the third side be of x centimeters. So let the third side be of x centimeter, right? So अभी हमने यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दिस वन ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, वी विल बी यूजिंग दिस दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल. So if we take the sum of these two sides, length of these two sides, then it must be greater than x. So by triangle इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, इन दोनों का सम यानी 8 प्लस 6 ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, एंड दोनों का डिफरेंस यानी 8 माइनस 6 लेसर होना चाहिए थर्ड साइड से, राइट? तो ये दोनों कंडीशंस हैं हमारे पास. 8 प्लस 6 दैट मीन्स 14 इज ग्रेटर देन x एंड 8 माइनस 6 दैट मीन्स 2 इज लेसर दैन x. तो इन दोनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करें यानी कि हम बोल सकते x ग्रेटर है किससे, इस वाले कंडीशन से वी कैन से x इज ग्रेटर देन 2. सो यहाँ आ जाएगा 2. x स्मॉलर है किससे, स्मॉलर है x इज स्मॉलर देन 14, सो इट इज स्मॉलर देन 14. दैट मीन्स x की वैल्यू किसके बीच लाई कर रही है, इट लाइज बिटवीन 2 एंड 14. सो देयरफॉर the length of the third side falls between 2 centimeter and 14 centimeter. This is the answer. So coming on to the last question. This figure is given. S is a point on the side QR of this triangle. We have to prove this. Okay, this we have to prove. So given, what is given here, triangle PQR and a point S is given on QR. S point हमें दे रखा है जो कि QR के ऊपर है. So what we have to prove, we have to prove this PQ plus QR plus PR is greater than 2PS. ये हमें प्रूव करना है. So now let's prove. Okay, let us consider this triangle PQS. So using triangle
inequality property in triangle PQS. इस ट्राइंगल में हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स. सो आई एम टेकिंग द टू साइड्स एज PQ प्लस QS. ये दोनों साइड्स मैंने ले ली, तो ये ग्रेटर होनी चाहिए किससे? PS से, क्योंकि यहाँ मैंने देखा क्वेश्चन में राइट साइड में इधर PS है जो हमें प्रूफ करना है 2PS. दैट्स वाई ऑन द राइट साइड आई एम टेकिंग PS. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है. आई एम टेकिंग लेट दिस इक्वेशन बी 1. सो अगेन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, यूजिंग ट्राइंगल inequality property in triangle PSR. Now I am using the same property in this triangle. Okay, so here we have PR plus SR is greater than PS. Let this be equation 2. Now I am adding equation 1 and 2. So adding इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो लेफ्ट साइड में आ गया PQ प्लस QS, PR प्लस SR इज ग्रेटर देन PS प्लस PS. ओके, सो वी हैव PQ प्लस QS प्लस SR प्लस PR. मैंने SR पहले लिख दिया, PR बाद में लिख दिया. इट इज ग्रेटर देन PS plus PS, it is 2PS. Now QS plus SR, you can see from the figure QS plus SR, this is forming the line segment QR, the side of the triangle. This is QR. So we have PQ plus QR plus PR is greater than 2PS. This is what we have to prove. Right, so I hope it is clear to you. Now just you have to use the properties, the theorems that we have proved and we have gone through. So try more question based upon this. Take care, bye bye.